Once again, welcome to everyone. We are going to study about the sentences. Before getting familiar with the sentence, I want to make you get aware with the word, that is, what is word. What is word? First of all, we have to get familiar with the word WORD. What is word? A word, a group of letters. A group of letters. For example, A plus P plus P plus L plus E. We will get A double P L E. This apple is a word, means it has complete meaning. That's why a word is defined as a group of letters which has complete meaning is called a word. Means, see here, T is a word, isn't it? And T is a letter and A is also a letter. When we will add this, what we will get? TA. Now, A is a letter and T is a letter. When we will add, what we are going to get? At. Means this is not a word. This is word because it has some meaning, as you know. So, after combining the letters, if we get the word that must have complete meaning, then only we can say that it is a word. So come to the point. What is sentence? Before we have studied that after combining the letters we are getting a word. Similarly, when we will combine the words, as for example Ram, isn't it? It is a word, plus is plus boy. Then what we will get? Ram is a boy. A has been left over here. Ram is a boy, means Ram is a letter, a word, E is a word, A is a word, boy is a word. So Ram is a boy. It is a sentence. See here. What is sentence? In simple term, a sentence is a set of words that contains subject and predicate. In simple term, a sentence is a set of words that contain a subject and a predicate. A subject, what the sentence is about, the topic of the sentence. Predicate, what is said about the subject. We will get clear this with example. See here, this is a sentence. You are getting confusion. See here, you speak English. This is a sentence because you is a word, speak is a word, and English is a word. When these three words are combined, then we are getting a sentence, that is, you speak English. You, here you is a subject, करने वाला, कर्ता. हिंदी में उसे बोलते हैं हम लोग कर्ता. एंड स्पीक इंग्लिश, प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा. वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है. और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया. यू ईट मैंगो, अगर मैं बोलता कि वी ईट मैंगो, वी ईट मैंगो,
तो वी सब्जेक्ट हो जाता, इट वर्ब हो जाता और मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाता। इसीलिए यहाँ आपके पास दिया हुआ है क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यू इज अ सब्जेक्ट, स्पीक is a verb, and English is an object. So, in the above example, the sentence is very short. Of course, a sentence can be longer and more complicated, but basically, there is always a subject and a predicate. सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे ही होंगे। एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा, यू स्पीक इंग्लिश। लुक एट दीज सिंपल एग्जाम्पल्स। In the above example, the sentence is very short. Of course, a sentence can be longer and more complicated, but basically there is always a subject and predicate. ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में हम लोग एक लंबा वाक्य लिख के देखते हैं। जैसे वाक्य है हमारा, राम एंड तारा स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राम एंड तारा सब्जेक्ट, वर्ब स्पीक, और जो बच गया वो क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट, इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रेडिकेट है उसमें वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक नाउन होता है, लेकिन ऑब्जेक्टियल वर्ब, ऑब्जेक्टियल नाउन, वर्बियल वर्ब हम लोग पढ़ेंगे आगे में, इसलिए मैं यहाँ कुछ आपको अभी नहीं लिख रहा हूँ कि ये क्या है। सिंपली यहाँ देखिए, आप कहेंगे कि नहीं सर इसमें तो वर्किंग भी तो आया है जो वर्ब है। ये वर्किंग नहीं, ये वर्ब है लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्हेन दे आर वर्किंग, व्हेन दे आर वर्किंग। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि राम एंड तारा दे आर द सब्जेक्ट, स्पीक इज अ वर्ब एंड दिस इज एन प्रेडिकेट। स्पीक प्लस इंग्लिश व्हेन दे आर स्पीकिंग इज अ प्रेडिकेट। नाउ note that the predicate always contains a verb. प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत ज़रूरी है या होता ही है। समटाइम्स इन फैक्ट द प्रेडिकेट इज ओनली अ वर्ब। बहुत सारे केस में बहुत ऐसी बातें होती हैं जिसमें प्रेडिकेट सिर्फ वर्ब ही होगा, उसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेडिकेट में वर्ब का होना और ऑब्जेक्ट का होना दोनों ज़रूरी है, नहीं, लेकिन वर्ब का होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो आपका एक वाक्य होगा। सिर्फ नाउन से एक वाक्य नहीं हो जाता है, नाउन के साथ या आपका प्रॉपर नाउन हो चाहे प्रोनाउन भी हो, प्रोनाउन भी रहेगा तो वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, एक वर्ब। वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वर्ब होगा तो ही हम बोलेंगे कि क्या है वो। देखिए यहाँ दिया है, स्मोक राइजेज, स्मोक राइजेज धुआं उठता है, या सिंपली टेक सन राइजेज, isn't it? The sun is a subject, rises is a predicate, isn't it? Water boils, we will take an example, water boils. तो water is a subject and boils verb। इसमें predicate हो गया boils और water हो गया subject। So we can say that a sentence must contain at least a subject and a verb। पूरी समरी ये है कि चाहे मेरा सब्जेक्ट सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सेंटेंस में हमारा क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है
कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रेडिकेट नहीं कहलाएगा। सिंपली लास्टली अगर एक वर्ब भी मिलता है, जनरली मेन वर्ब होना चाहिए। मेन वर्ब मीन्स वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। नंबर, पर्सन एंड टेंस इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वो मेन वर्ब होता है या जिसमें मॉर्फिम्स को जोड़ा जा सकता है, एस ई डी, नहीं V1 V2 V3 बनाने के लिए जो वर्ब अपना रूप चेंज करता है उसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। देयर इज वन apparent exception to this, the imperative. When someone gives a command, the imperative, they usually do not use a subject. They don't say that subject becomes it. Obviously the subject is you. Look at the examples of the imperative sentence and without a subject. बिल्कुल see here, pay attention. ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत कर सकता है लेकिन नहीं होने दूंगा। देखिए यहाँ क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है और यहाँ हमारे पास एक प्रेडिकेट है ना। अब सब्जेक्ट जो है यू स्टॉप, स्टॉप के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, यानी उसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यू वेट अ मिनट, यू वेट अ मिनट, अ मिनट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यू लुक, एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी वेट अ मिनट, एवरीबडी लुक, ये सब ऐसे हैं जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही वाक्य है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। और एक एग्जांपल देते हैं मैं, देखिए अगर किसी वाक्य में अंत में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, तो क्या वो सेंटेंस होगा? बिल्कुल, सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, नॉट ऑफ इंटीग्रेशन हो, देन वी कैन कॉल इट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम प्रेडिकेट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ वर्ब है तो हम भी उसको प्रेडिकेट ही बोलेंगे। Note that a sentence expresses a complete thought. Here are some examples of complete and incomplete thoughts. See here. He opens the door. He opened the door. Complete thought है, पता चल रहा है कि उसने दरवाज़ा खोला, तो लिखा हुआ है यस। Come in please. यस, कंप्लीट मीनिंग है। डू यू लाइक कॉफ़ी, कंप्लीट मीनिंग है, बिल्कुल सही बात है। पीपल हु वर्कड हार्ड, इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसलिए इसमें देखिए कोई फुल स्टॉप भी नहीं है, कोई इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है, कोई नॉट ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अ फास्ट मूविंग एनिमल विथ बिग ईयर, ये भी क्या है, हमारा सेंटेंस नहीं है। हाँ, क्यों नहीं सेंटेंस है ये, इसको क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, पीपल हु वर्कड हार्ड, तो कह सकते हैं सिंपली पीपल के पहले दे कॉमा द पीपल, वी द पीपल कर सकते हैं, वी द पीपल हु वर्कड हार्ड, तो यहाँ हम लोग अंत में फिर क्या लिखेंगे, यस। अगर ऐसा होता तो नहीं, यहाँ है अ फास्ट मूविंग एनिमल विथ बिग ईयर, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके पहले रैबिट, RABBIT, रैबिट इज अ फास्ट मूविंग एनिमल विथ बिग ईयर्स, तो भी इसका कंप्लीट सेंस निकल जाता है और लिख देते हैं हम लोग यहाँ यस। और यहाँ ये किस चीज़ का काम कर देता है, हमारा किस चीज़ का, सब्जेक्ट का। बाकी इसमें अ फास्ट मूविंग एनिमल हमारा सब्जेक्ट हो जाता, प्रेडिकेट हो जाता, जिसमें वर्ब आ जाता और ऑब्जेक्ट आ जाता। नोट ऑल्सो दैट अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर
एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, जो मैंने आपको बताया। सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में क्या हो, एक फुल स्टॉप हो, एक क्वेश्चन मार्क हो और एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स को, नोट ऑफ इंटरोगेशन। मतलब ये होगा कि कोई सडन फीलिंग की बात आ जाए, लुक आउट, ब्रेवो, हुरे, वोन द मैच, नहीं क्या, हुर्रा, वी वोन द मैच, आउच, आई गॉट अ हर्ट। तो ये सब क्या है, सडन फीलिंग्स हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। नोट ऑफ इंटरगेशन मार्क्स क्वेश्चन सेंटेंस होता है, और ये हमारा असर्टिव सेंटेंस फुल सेंटेंस होता है। देखिए, सेंटेंस जो है फ्रेज और क्लॉजों से मिलके बना होता है। सेंटेंस में फ्रेज भी होते हैं और क्लॉज भी होते हैं। थोड़ा सा हम फ्रेज के बारे में पहले आपको बताऊं कि फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज में, a phrase is a collection of words that may have noun or verb, but it does not have a subject doing a verb. The following are the examples. Subject clause plus phrase. इसको सिंपली ऐसे समझिए कि क्लॉज में क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा और प्रेडिकेट में सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वाटर, boils on the stove. See here, वाटर बॉयल्स, फुल स्टॉप डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिए थे ना, वो स्मोक राइजेज। तो स्मोक राइजेज, स्मोक का काम कर रहा है वाटर, बॉयल्स का काम कर रहा है, स्मोक का काम कर रहा है बॉयल्स। तो ये हो गया मेरा क्लॉज। ये जो हो गया, क्या हो गया, क्लॉज। ऑन दी स्टोव इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये हो गया फ्रेज, और ये क्या हो गया, क्लॉज। एक और एग्जांपल देते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट। सिमिलरली सन राइजेज क्या हो गया, क्लॉज। इन द ईस्ट क्या हो गया, फ्रेज। उगता है, कैसे पता चल रहा है कि सर फ्रेज होगा, मैं सिर्फ बोलूं कि इन द फील्ड, सिर्फ बोल दूं क्या कि इन द फील्ड, तो इसका कोई सही अर्थ नहीं आ रहा है। अब इसके पहले अगर मैं जोड़ दूं कि काऊ ग्रेजेज, काऊ ग्रेजेज, तो काऊ ग्रेजेज क्या हो गया स्टूडेंट, क्लॉज हो गया। क्या हो गया, क्लॉज हो गया। और इन दी फील्ड क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्यों क्लॉज हो गया, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक मेन वर्ब है। सो सी हियर, लिविंग अ डॉग, living a dog, smashing into a fence, before the first taste, ये सारे क्या है, हमारे फ्रेज हैं, क्योंकि इसका कोई एक कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्रोकन इनटू थाउजेंड ऑफ पीसेस, यही लेते हैं, ब्रोकन इनटू थाउजेंड ऑफ पीसेस। कौन सा ऐसा चीज़ है जो हजारों के टुकड़ों में टूट गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिर्फ इसके पहले अगर आप लगा दो, क्या, सिर्फ इसके पहले आप लगा दीजिए ग्लास हैज ब्रोकन इनटू थाउजेंड ऑफ पीसेस, तो हमारे पास क्या आ गया, एक नाउन आ गया, जो किस चीज़ का काम कर देगा,
सब्जेक्ट का, इसका पूरा अर्थ निकल जाएगा। और सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि ग्लास हैज़ ब्रोकन, इतना तक, तो ये क्लॉज हो जाएगा। और सिर्फ ये पूरा ले लेंगे, ब्रोकन इनटू 1000 पीसेस, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। नाउ talk, just we will take some examples of clause, then we will get complete over this chapter. Clause क्या है? A clause is a collection of words that has a subject that is accurately doing a verb. The following are examples in front of you. Since she laugh at different men. सिर्फ इतना हम कहते, देख लीजिए यहीं पे हम लोग दोनों समझ लेंगे कि since she laughs at different, ये हो गया फ्रेज, ये हो गया क्लॉज। इन डिस्पाइस इंडिविजुअल ऑफ लो क्लास, व्हेन दी सेंट्स गो मार्चिंग इन बिकॉज शी स्माइल्ड एट हिम, ये क्लॉज है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, जिससे आप कह सकते हैं कि कैसे सर पता चल रहा है कि यह हमारा क्या है, क्लॉज है। मैंने अभी बताया आपको कि क्लॉज में एक मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या क्या है मेन वर्ब? सिंस शी लाव्स, इन स्पाइट ऑफ, इंडिविजुअल, इन डिस्पाइस, व्हेन द सेंट्स गो मार्चिंग इन, गो मार्चिंग, बिकॉज शी स्माइल्ड एट हिम, स्माइल्ड। तो ये है मेरा मेन वर्ब, और जिसमें एक वर्ब हो, मेन वर्ब, जिसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा हो, उसे हम बोलते हैं CLAUS, दैट इज आवर क्लॉज। ओके, थैंक यू। मोर इन दी नेक्स्ट चैप्टर, स्टूडेंट कीप ऑन स्टडिंग, एंड फर्दर in next class we will going to talk about the next chapter. Thank you. Have a nice day.